मांग हमारी है। पहली मांग ये है कि जो भरी संसद में अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया है उसके लिए उसको बर्खास्त किया जाए, इसलिए था। और दूसरा हमारा मांग है कि देश में ईवीएम मशीन पर किसी को भरोसा नहीं है। इवन बीजेपी के पार्टी में जो पार्टी के लोग हैं उसमें शामिल हैं, उनको भी भरोसा नहीं है। पूरे भारत में किसी को भरोसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी को ईवीएम का भरोसा है कि वो ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव जीत रही है। इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। और तीसरी हमारी बड़ी मांग है कि इस देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। 1921 कुत्ते की, गधे की, हिजड़े की गणना हो रही है, शेर की गणना हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, पालतू कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। इसलिए पूरे भारत को आज हम भारत बंद करके ये मांग कर रहे हैं कि हमारी तीनों मांग मांगी चाहिए, नहीं तो इससे भीषण भी आंदोलन किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। तड़ी पार माफ़ी मांगे, अमित शाह जो है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, और ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। और इस देश में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, सबकी गणना होनी चाहिए, सबकी गिनती होनी चाहिए। कौन इस देश में लूट खा रहा है और कौन भीख मांग रहा है ये पता चलना चाहिए। ये हमारी मांग है। नहीं सहेंगे। हटाओ देश बचाओ, हटाओ देश बचाओ, गिनती कराओ, हटाओ देश बचाओ, हटाओ देश बचाओ, हटाओ। एक सेकंड સાંભળો તારે, 1 મિનિટ સાંભળો। હવે શું છે કે અમે પરિબળ સોસાયટી હવે બીજો રસ્તો એ છે, તમે અમારી ધરપકડ કરી શકો। બીજો રસ્તો બરાબર, તમે ધરપકડ કરી શકો, અન્યાયની ખિલાફ હોવાની શકો। પરિવહન સુધી જવા દો તો અમે તમારે પરિવહન સુધી જવા દો તો આભારી રહીશું। કોઈ ઉઠવા નહીં, 10 મિનિટ છે સાહેબ। મજૂરી આરએસએસ વાળા મજૂરી કે છે, તમે પોલીસ સુધી પડી ગઈ આરએસએસ વાળા મારા સાહેબ આરએસએસ વાળા હળદી ચડ્ડીઓ પહેરી નીકળે છે। આ લોકો હળદી ચડ્ડીઓ પહેરી નીકળે છે, કોઈ દાડો પરમિશન લેતા નથી, ત્યારે આપણે કશું નહીં કરતા। તો સાહેબ ક્યાં આપણે કેમ અમારી આઝાદી નહીં? આ વસ્તુ છે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે અમે ઇન્ટિમેશન આપ્યું છે। ઇન્ટિમેશન અપાય, ભારતના નાગરિકો છે, આરએસએસ ને પરમિશન નથી તો અમારે અરજી ના પાડવાના છે। કોઈ વિસ્તારમાં આવશે અને તમારી મારી કોઈની કોઈ ઓકાત નથી, એને કોઈ રોકી શકે। આરએસએસ વાળા ખાલી 10 મિનિટ હું મારી હાજરીમાં કાયદો તોડવાની પાછા 1 મિનિટ। જ્યારે આ હાફ ચડ્ડી 4-5 ફૂટની લાઠીઓ લઈને નીકળે છે ત્યારે તે લોકો આપણે પાવરમાં આવે અરે આખા દેશમાં એ લોકો ફરે છે, પણ મારા વિસ્તારમાં પરમિશન લીધા વગર ફરે છે અને આપણે કશું નથી કરી શકતા। અમે
વિસ્તારમાં આવ્યું આપણી ભૂલ છે મારા વિસ્તારમાં બતાવો છો કે આ સાહેબ કોઈનું કશું ના આવે હું વાત કરો તમે નીકળે તો ખરા મારા વિસ્તાર આપણા મુશ્રીફ સાહેબનો વિડીયો અવેલેબલ છે કોઈનું કશું ના આવે હા મુશ્રીફ સાહેબ ફ્રોમ મહારાષ્ટ્ર આઈજી રિટાયર્ડ આઈજી સરકારની હત્યા કોને કરી? હવે 5 મિનિટ કહેવાનો મતલબ હું છે આ રોડ ક્રોસ કરી પેલી બાજુ જાય અને અમે હાર કેરા અમારો કાર્યક્રમ પૂરો બબાલ કરી રહ્યા અને જો આપણે એક મિનિટ જો હા મંજૂરી તો અમે માંગી જ નથી અમે તો ખાલી મંજૂરી વાત કરતા નહીં મંજૂરી આપતા નહીં સાહેબ, તમે મંજૂરી આપતા નહીં, તમે લેતા નહીં. ની વાત કરો છો એની અંદર છે કે ભાઈ કાયદાથી આ રીતના મંજૂરી પણ કાયદો અમારા માટે કેમ આરએસએસ માટે કેમ વાપરતા નથી સાહેબ અમારા વિસ્તારમાં નહીં ચાલે RSS માટે કાયદો અલગ છે, બજરંગ દળ માટે કાયદો અલગ છે. આર્ટિકલ 19 ની અંદર સભા કરવાનો રેલી કરવાનો વગેરેનો આર્ટિકલ 19 અમારો મૂળભૂત અધિકાર છે સર. ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે. અમે નોન વાયોલન્સ છીએ બધું અમારા હાથમાં ક્યાંક કરીએ પણ ના બોલો. મંજૂરી હોય તો મને આપો લાખો માણસો બધા લોકો કરી નાખે છે મર્ડર કરી નાખે છે એમ કહેશો કે આને મર્ડર કરી તો ઊભી કરી આપણે કાયદો નહીં તોડીએ અમે તો કઈ આરએસએસ વાળાને રોકો અમે તમે કહો એમ કરવા તૈયાર છે કે કોઈ મારા વિસ્તારમાં હશે તો આખા દેશમાં એ ચાલે RSS વાળા. આ બજરંગ દળ વાળા તલવારો લઈને ફર્યા સાહેબ. અને સાહેબ તમે અમને રોકો. આ બજરંગ દળ વાળા RSS વાળા તલવારો લઈને ફર્યા. અને તમે અમને રોકો. ગરીબ માણસોને રોકો. જો તાકાત હોય તો ભાજપને એમને રોકો. RSS ના ગુલામો બની બેઠા છો અમે તો લડ્યા છીએ સાહેબ. પોલિટિકલ પાર્ટીના ગુલામો બની બેઠા છો તમે. રોકવા તો ગરીબોને રોકો. આ તવંગરોને રોકો. આ પૈસાદારોને રોકો. 5 મિનિટ છે પાછળની સોસાયટી જઈ અને બાબા સાહેબને બોલાવીને સમાપન કરીએ છીએ चाहिए हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि इस देश में पालतू कुत्तों की, फालतू कुत्तों की, गधों की, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़ों की किसी ज़्यादा गिनती नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि इस देश में जब भारत सरकार जाति प्रमाण पत्र तहसील से जारी करवाती है, सभी लोगों को जारी करवाती है, तो उसको गिनती करने में क्या दिक्कत है? इस देश में जाति सच्चाई है। आदमी जब पैदा होता है तो वो ज़मीन जायदाद लेके पैदा नहीं होता, बल्कि जाति जरूर लेके पैदा होता है। इसलिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। 1931 से जनगणना नहीं हुई है। हमारी मांग है कि जनगणना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। ऐलान किया गया है और जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत की जनता के ज्वलंत मुद्दों एवं संबंधित विषयों पर, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति जनगणना न करने एवं उन्हें संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी न देने के केंद्र सरकार के नीति के विरोध में एवं चुनाव आयोग द्वारा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को न अपनाने के कारण चुनाव में ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में तथा सभी चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर लागू करने के समर्थन में तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब सही नहीं है। आप लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का विरोध किया, अपमान का बदला लेने का काम किया। ये मेरा व्यक्तिगत भाषण है। उन्होंने बीजेपी को बचाने का काम किया। साथियों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को बचाने का काम किया। क्यों? क्योंकि इस देश में जो मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे जो चल रहे थे, जाति आधारित गिनती की, ईवीएम की, उस मुद्दे को दबाने के लिए नया मुद्दा खड़ा किया। अमित शाह इतना बड़ा गधा नहीं है, इतना बड़ा गधा नहीं है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिस्सेदारी न देने की नीति के विरोध में एवं चुनाव में ईवीएम से हो रही धांधली के विरोध में
तथा बैलेट पेपर को लागू करने के समर्थन में तथा अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में संसद में किए गए अपमानजनक बयान के विरोध में 31 दिसंबर 2024 को भारत बंद का आयोजन किया गया है। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि इसमें सहयोग देकर इस भारत बंद मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो धर्म में किया जा रहा है उसको सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। हेलो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लेकर के आज पूरे देश में भारत बंद कर रहे हैं। आप लोग सभी व्यापारी बंधुओं से SC ST OBC माइनॉरिटीज के बुद्धिजीवी किसान मजदूर फुटकर व्यापारी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस भारत बंद का समर्थन करें और यहाँ आकर के अपनी बात रखें। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हटाओ, देश बचाओ। हटाओ, देश बचाओ। गिनती कराओ, हटाओ, देश बचाओ। हटाओ, देश बचाओ। की गई, जिसके बाद में भी ईवीएम मशीन का मुद्दा नहीं बदला, तो फिर देश के गृह मंत्री के द्वारा ये सोचे समझी रणनीति के तहत बाबा साहब का अपमान किया गया और ये कहा गया कि देश में एक फैशन बन चुका है कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम करते रहते हैं। अगर इतना ही नाम, इससे ज्यादा नाम राम का देते तो ये लोग आज स्वर्ग में जाते। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कैसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको जय भीम से नफरत है, आपको जय भीम से दिक्कत है, तो आप राम नाम का राम 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 बोल बोल के आप स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते हैं? आप जिस संविधान की वजह से आज गृह मंत्री बने हैं वो संविधान का ही अपमान कर रहे हैं। सिर्फ संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं, इस देश के 97% लोगों का अपमान कर रहे हैं और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपको शर्म आना चाहिए गृह मंत्री जी, और आपको देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से, वो संविधान निर्माता से, वो संविधान मानने वाले लोगों से हाथ जोड़ के शर्म के साथ में माफी मांगना चाहिए। माफी के साथ आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये आपको शर्म आने की बात है। आपने सिर्फ जी देखिए, आज जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन नहीं है, ये देश के 32 राज्यों में 564 जिलों में राष्ट्रव्यापी भारत बंद, और ये भारत बंद करने के पीछे हमारा जो मकसद है, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह के द्वारा 17 दिसंबर 2024 को संविधान निर्माता विश्वरत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी की गई। दूसरा हमारा विषय है ईवीएम मशीन के विरोध में जो बड़े पैमाने पर 2004 से भी बड़े पैमाने पर वोट की चोरी हो रही है, दूसरा हमारा विषय है। और तीसरा जो विषय है, इस देश के अंदर 1931 में पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर गिनती हुई थी, जनगणना हुई थी। उस समय